हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का भूगोल का अध्याय 2, यानी जो क्लास 9th का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर जो है 2, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, यानी भारत की भौगोलिक विशेषता। ये चैप्टर जो है काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से, और प्लस जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं ये जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ क्वेश्चन होगा, जिसमें जो है कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे एग्जाम व्यू से। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो 100% है जो कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा सबको अटैम्प्ट करने में आप सक्षम हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से समझना है, सोचना है, विचार करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द इंडियन लैंडमार्क्स शो अ ग्रेट फिजिकल कंट्रास्ट। Explain this statement. There is an important question. There is a very simple question here. The Indian landmarks show a great physical contrast. They explain this statement. The answer here: India as a landmark has a great contrast as the peninsular plateaus in the south in a very old is a land masses. There is a all land masses is a year here 65 millions year. Whereas the Himalaya in their northern are fairly new. The Himalaya in the northern are fairly new is about 25 million years. The old air 65 million years and new air about 25 million year. Tectonically, there is Himalaya and northern plan are is an unstable zone. Is important here. Two, land here is a formation is a very old landmarks is a 65 million years and the time period, and the Himalayas in northern is a fairly new is about 25 million years. Tectonic, their Himalayas and northern plan are is an unstable zone, whereas the peninsular plateau is a very stable. Over million of year weathering force have made the contrast a sharp. Well, the Himalayas are composed of sedimentary and metamorphic rock, and a northern plain are made of deposit of aluminium. Aluminium, their peninsular plateaus is made up of igneous and metamorphic rock, whereas the Himalaya have a lofty peak and steep-sided is valleys. The Deccan region has a gently rising of ranges and wild valleys. Thus, the Indian landmarks show a great physical contrast. There is a most important question and important answer here. And shortly, Indian landmarks is a two types. All landmarks is a 65 million year ago formation, and new year Himalaya is a formation of 25 million year ago. And tectonic, the Himalayas and northern plain are unstable zone, and peninsular plateau is very stable. Over million of years, weathering force have made the contrast sharper, and Himalaya composed of sedimentary and metamorphic rock, and the northern plain are made of deposit aluminium, and the peninsular plateaus are made of igneous and metamorphic rock. Where the Himalaya have a softly peak and steep sadly valley, the Deccan regions are gently rising to range and wild valleys. Thus, the India is a landmark show as a great physical contrast. There is a most important question. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है 6वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसकी महत्वपूर्णता को आपने अगर देखा ध्यान से तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा, और इस चैप्टर के अंतर्गत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही है। कहते हैं भारतीय भूभाग में एक महान भौगोलिक विषमता दिखाई देती है, यानी भारतीय भूभाग में एक महान भौतिक विषमताएं दिखाई देती है। इस कथन की व्याख्या आपने करना कि आखिर भारतीय भूभाग में एक महान भौतिक विषमताएं कैसे दिख रही है और इसका क्या कारण है। तो यही क्वेश्चन का महत्व है, और यही क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय भूभाग यानी भारतीय भूभाग क्षेत्र में एक महान भौतिक विषमताएं दिखाई देती है। तो इस कथन का जो है आपने सतर्कता सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कई बच्चे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, तो वो आंसर वो क्या याद करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को आपको समझ में अच्छे से हो, क्वेश्चन के पकड़ अच्छे हो।
तो यही यहाँ पर आंसर भी दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के भूभाग में काफ़ी विषमताएं हैं। तो इसमें जनरली सी बात में कोई इसमें दो राय नहीं है कि भारत के भूभाग में काफ़ी विशेषताएं देखने को मिला है। कहीं ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो कहीं मैदान है, तो कहीं वोल्केनिक्स है, तो कहीं जो है आपको ठंडक है, तो कहीं गर्मी है। तो भारत के भूभाग में काफ़ी विषमताएं देखने को हमें मिलता है, क्योंकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुरानी भूभाग है। अगर हम बात करें दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार की, तो ये काफ़ी पुरानी है, और पुरानी इतनी कि आप गणना करना संभव नहीं, यानी 65 मिलियन वर्ष है। 65 मिलियन वर्ष कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुरानी भूभाग है, 65 मिलियन मापा जा सकता है। जबकि उत्तर में हिमालय काफ़ी नया है, यानी देखा जाए तो हिमालय का निर्माण बहुत साल पुराना नहीं है। हिमालय के तो कुछ ही समय पहले प्लेटों के कारण जो है निर्माण हुई है, और इसकी आकलन लगभग जो है 25 मिलियन वर्ष लगाई गई है। यानी हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो 25 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, जो कि काफ़ी नज़दीकी यहाँ मामला आ रहा है। तकनीकी रूप से हिमालय और उत्तरी मैदान अस्थिर है क्षेत्र है। यानी देखा जाए, अगर हम तकनीकी रूप में देखें तो तकनीकी रूप में देखने से ये पता लगता है कि हिमालय और उत्तरी मैदान अस्थिर क्षेत्र है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार जो है बहुत स्थिर है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, स्थिर और अस्थिर का मतलब क्या है। देखिए, अस्थिर जो कंटिन्यूस से करते रहते हैं उसे अस्थिर कहते हैं, और स्थिर जिसका निर्माण ही नहीं होता है। अगर हम देखें निर्माण के अंतर्गत, तो अस्थिर मतलब जो निर्माण कंटिन्यू चल ही रहा होता है, और स्थिर का मतलब होता है जो निर्माण होना बंद हो गया है। तो यही बात यहाँ क्वेश्चन बताता है कि जब प्रायद्वीपीय पठार बहुत स्थिर है, यानी ये अभी कोई एक्टिविटी करके नहीं दिखा रहा है। लाखों वर्षों में अपक्षय बलों ने इसके विपरीत को तेज कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो लाखों वर्ष में, यानी समय के अंतराल में अपक्षय बलों ने इसकी जो है विपरीतों को काफ़ी तेज कर दिया है। और जबकि हिमालय तलछटी और कायांतरी चट्टानों में बना है। अगर हिमालय की बात करें हम, तो हिमालय का निर्माण जो है तलछटी और कायांतरी चट्टानों के कारण ही हुआ है। तो ये चट्टानें इसके हिमालय के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, और उत्तरी मैदान निक्षेपित जदोल से बना हुआ है, और प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है? आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जबकि हिमालय में ऊंची चोटी और खड़ी किनारे वाली घाटी भी पाई जाती है, यानी यहाँ पर वैली भी पाई जाती है, छोटी, खड़ी और लंबी लंबी। दक्कन क्षेत्र में धीरे धीरे उभरी हुई श्रेणी और चौड़ी घाटियाँ काफ़ी देखने को मिलता है। यानी दक्कन क्षेत्र में आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको उभरी हुई श्रेणी और चौड़ी घाटियाँ देखने को मिल जाती है, और इस प्रकार भारतीय भूभाग में एक महान भौतिक विषमताएँ देखी जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि एक महान भौतिक विषमताएँ क्या होती है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में हर क्षेत्र के विषय में कुछ नए जानने को हमें मिला। तो यही विषमताएँ हैं। कहते हैं हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, उनकी विषमताओं की बात कर रहे हैं कि भारत के भूभाग में काफ़ी विषमताएँ इन्हीं कारणों से है। कहीं किसी का निर्माण लाखों वर्ष लगे हैं, किसी की जो है कायांतरी चट्टानों से बने हुए हैं। तो कोई क्षेत्र को देखोगे तो बड़े बड़े यहाँ पर बेली पाई जाती है, कहीं कहीं चौड़ी घाटियाँ पाई जाती है। तो इतनी विषमताएँ सिर्फ भारत के भूभागों में ही देखने को मिल सकता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये रहता है, अगर आप इसको समझने की कोशिश अच्छे से करते हो तो समझ में भी आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण से उनका सहायता करना है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। आपको मैं ये बात हमेशा इसलिए कहता रहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि दूसरे की भलाई करने से आपका स्वयं का भी भलाई हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, जिससे कि आने वाला समय में आपको जो है 10वीं का भी नोटिफिकेशन मिले और आप जो है त्रिपाण नेशनल सेंटर के वीडियो को देख के समझ के अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।